Hello friends, welcome to my channel Jigna's Classes. Today we will cover the chapter Anmol Upahar. Anmol means very precious, the things which cannot be measured in terms of money. Very precious. Upahar means gift. So Anmol Upahar is the meaning like very precious gift. So in this chapter there are two boys, Saurabh and his friend Sarthak. So Saurabh has collected few money to buy gift for his sister on the occasion of Raksha Bandhan. By that time, his friend Sarthak, he got some problem for his mother's illness, and Sarthak had no money to get treatment, to get medicine for his mother. So Saurabh helps his friend Sarthak by giving this collected money, which he collected for getting gift for his sister. But he gives such money to his friend Sarthak because Sarthak actually is in need of that money. By that way, Saurabh helps his friend so much. So the moral of the story, we should help our friend. We should be a friend at the time of problem also, and at the time of happiness also. So let's start. सौरभ नाम का एक लड़का था. So there was a boy, his name was सौरभ. वह स्वभाव से बहुत भोला भाला था. भोला भाला means innocent. So by nature, he was so much innocent. Very kind also. वह अपने बड़ों का बहुत सम्मान करता था. सम्मान means respect. So Saurabh was giving respect to his elders. बड़ों का means elders. अपने से छोटों को बहुत प्रेम से रखता था. And he takes very good care of younger than him. And it means he was giving so much love to the younger one. उसे हर कोई बहुत प्यार करता था. Everyone loved him so much. सौरभ अपनी बहन समृद्धि, the name of Saurabh's sister is समृद्धि, को प्रत्येक रक्षाबंधन पर एक सुंदर सा उपहार देता था. सुंदर सा means beautiful, उपहार means gift. So every year Saurabh used to give a very beautiful gift to his sister Samruddhi on the occasion of Raksha Bandhan. इस उपहार के पैसे जमा करने के लिए सौरभ ने एक गुल्लक बना रखी थी. गुल्लक मीन्स पिगी बैंक, in which he can collect money. So to buy this gift, he kept one piggy bank in which he used to collect money and kept in that. उसे जब भी माता पिता, दादा दादी पैसे देते, वह गुल्लक में डालता रहता था. So when he was getting money from mata pita, parents, dada dadi, from grandparents, he used to put that money in this piggy bank, gullak. जब रक्षाबंधन आता, when रक्षाबंधन was coming, वह अपनी गुल्लक तोड़ देता. He used to break his piggy bank to get money. इस बार भी वह समृद्धि के लिए कुछ सुंदर सा उपहार खरीदना चाहता था. This year also he wanted to buy a beautiful gift for his sister समृद्धि. इसलिए रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले ही उसने अपनी प्यारी सी गुल्लक तोड़ दी थी. So that just before few days before Raksha Bandhan, he broke his lovely
पिगी बैंक टू गेट द मनी। उसने गुल्लक के पैसे गिने तो उसमें पूरे 2,000 रुपये निकले। When he counted money from his piggy bank, he found that he had 2,000 rupees. 2,000 2,000 rupees. उस दिन उसके स्कूल जाने का समय हो गया था। On that day, it was the time to go to school. इसलिए वह पैसे अपनी अलमारी में रख कर चला गया। So he kept all this money in his cupboard. अलमारी means cupboard. जब वह अपने स्कूल पहुंचा, when he reached to his school, तो वहाँ उसका दोस्त सार्थक मुंह लटकाए उदास बैठा था। मुंह लटकाना मीन्स टू फील सो मच बैड, हैविंग सम टेंशन. उदास मीन्स सैड. So when he reached to school, he saw that his friend सार्थक was looking so sad. जब सौरभ ने उसे उदासी का कारण पूछा, when सौरभ asked सार्थक about for the reason of his sadness, उदासी means sadness, तो वह दुखी मन से बोला. So he replied with very दुखी मन means very heavy heart. आजकल मेरी माँ बहुत बीमार है. Nowadays my mother is very sick. तुम तो जानते ही हो कि मेरे पापा दिल्ली में ई रिक्शा चलाते हैं. You know that my father is driving e-rickshaw in Delhi. और पिछले कुछ दिनों से ई रिक्शा की हड़ताल चल रही है. And since last few days there has been a strike of e-rickshaw, जिसके कारण पिताजी की कुछ कमाई, because of that my father was not able to earn any money or to get any money. इतना कहते कहते वह रो पड़ा. By saying all this, he started crying. रोते रोते उसने सौरभ को बताया. While he was crying, he told सौरभ, आज तो मेरी माँ की दवा भी नहीं आ सकी. Today we couldn't buy medicine for my mother. सार्थक की बात सुनकर सौरभ ने उसे सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा. By listening this, Saurabh tried to give सांत्वना means sympathy. Tried to give sympathy to Sarthak by keeping his hand on the shoulder of Sarthak. कंधा means shoulder. दोस्त, friend, हमारे होते हुए तुम ऐसे चिंतित न रहो. My friend, don't worry. You should not be worried. As we are with you. हमारे होते हुए as we are with you. मेरे पास कुछ रुपये है. I have few money. उन रुपयों से तुम अपनी माँ का इलाज करा सकते हो. With that money, you can give treatment to your mother. इलाज कराना means to give treatment. सौरभ की बातें सुनकर सार्थक भी भावुक हो गया. Hearing all these things from Saurabh, Sarthak also became emotional. भावुक means emotional. उसने उसे गले लगाकर कहा. सार्थक hugged Saurabh and said, सौरभ, तुम बहुत अच्छे हो. सौरभ, you are very good. मेरे सच्चे दोस्त हो. You are my true friend. इस पर सौरभ ने सार्थक को प्यार से पुचकारते हुए कहा. By all these things, सौरभ told सार्थक with so much love. प्यार से पुचकारना means so much love. To pamper him. हाँ हाँ ठीक है मेरे दोस्त. ओके ओके माय फ्रेंड. अब तुम किसी बात की कोई चिंता मत करना. Now you don't worry about any matter. चिंता मीन्स वरी, मत करना. डोंट बी वरी. हम सब तुम्हारे साथ हैं. वी आर विथ यू.
वी ऑल आर विथ यू। सौरभ स्कूल की छुट्टी के बाद सार्थक को अपने घर ले गया। सो सौरभ टुक सार्थक टू हिज हाउस आफ्टर लीविंग द स्कूल, और चुपके से उसके हाथों में 2,000 रुपये थमा दिए। सो वेरी क्वाइटली ही सौरभ गेव 2,000 रुपीज़ इन द हैंड ऑफ सार्थक, और कहा कि एंड टोल्ड, अपनी माँ के लिए दवा खरीद लेना, एंड इन्फॉर्म दैट प्लीज़ बाय मेडिसिन फॉर योर मदर। सार्थक ने उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करना मीन्स धन्यवाद देना, टू से थैंक यू। सो सार्थक सेड थैंक यू और तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। एंड इमीडिएटली ही रश्ड, सो सार्थक रश्ड टू हिज होम। उपहार के पैसे सार्थक को देने के बाद सौरभ चिंता में पड़ गया। आफ्टर गिविंग मनी टू सार्थक, सौरभ वॉज वरीड कि अब वह समृद्धि को उपहार में क्या देगा। नाउ व्हाट विल ही गिव एज ए गिफ्ट टू समृद्धि। अभी यह सोच ही रहा था कि उसकी नज़र अपनी क्राफ्ट की पुस्तक पर पड़ी। By that time he was thinking what to do, what to give. At that time he saw a book of craft. He saw a craft book. सौरभ ने उस पुस्तक में पेन स्टैंड बनाने की विधि दिखी। विधि मीन्स प्रोसेस। इन क्राफ्ट बुक सौरभ सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेन स्टैंड, और मन ही मन सोचने लगा, एंड ही वॉज थिंकिंग कि अब वह समृद्धि को रक्षाबंधन पर अपने हाथ से बना गिफ्ट ही देगा। एंड ही थॉट दैट ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन ही विल मेक अ गिफ्ट एंड विल गिव टू समृद्धि। अपने हाथ से बना, ही विल मेक अ गिफ्ट विथ हिज हैंड एंड विल गिव टू समृद्धि। फिर उसने कहीं से एक लोहे का डिब्बा ढूंढा। देन ही फाउंड एन आयरन बॉक्स। लोहा मीन्स आयरन, डिब्बा मीन्स कंटेनर और बॉक्स। ही फाउंड एन आयरन कंटेनर और बॉक्स। फिर उसने कहीं और अपनी अलमारी से कुछ पुराने रंग बिरंगे कपड़े लिए। एंड देन ही गॉट फ्यू कलरफुल क्लॉथ्स। रंग बिरंगे कपड़े, पुराने मीन्स ओल्ड। एंड देन ही गॉट फ्यू ओल्ड कलरफुल क्लॉथ्स फ्रॉम हिज कबर्ड। अलमारी मीन्स कबर्ड। और एक पुरानी सी मोतियों की माला ढूंढ निकाली। एंड ही ऑल्सो फाउंड वन ओल्ड pearl necklace. So now he had old colorful clothes and old pearl necklace. मोती means pearl, माला means necklace और chain. उसने अब एक फेविकॉल का डिब्बा लिया। Then he took a फेविकॉल डिब्बा और फेविकॉल बॉक्स, और लोहे के डिब्बे के नाप का गुलाबी रंग का कपड़ा काट कर उसे डिब्बे के चारों तरफ बड़े सुंदर तरीके से चिपका दिया। एंड देन ही कट द पिंक कलर क्लॉथ, मेजरिंग विथ लोहे का डिब्बा, मेजरिंग विथ आयरन डिब्बा, एंड बाय कटिंग दैट ही स्टिक्ड all over the dibba with फेविकॉल. So he took pink color cloth, measuring iron box, and then stick it all around it, और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया. And then he kept that iron box for drying. कुछ देर बाद मोतियों को बड़े ही सुंदर तरीके से डिब्बे पर चिपका दिया. After some time he sticked this pearl necklace, pearls on that iron डिब्बा. देखते ही देखते सुंदर सा पेन स्टैंड बनकर तैयार हो गया. एंड विद इन सम टाइम ही कुड मेक अ वेरी ब्यूटिफुल पेन स्टैंड. सौरभ ने उसे सहेज कर
गिफ्ट की तरह पैक किया। सहेज कर मीन्स संभाल कर। देन ही केयरफुली, सहेज कर मीन्स ही केयरफुली पैक्ड दिस गिफ्ट। जब समृद्धि ने रक्षाबंधन के दिन सौरभ को राखी बांधी, when on the day of रक्षाबंधन समृद्धि टाइड राखी टू सौरभ, सौरभ ने उसे उपहार का डिब्बा पकड़ा दिया। सौरभ गेव हिम दिस डिब्बा एज अ गिफ्ट। सौरभ का उपहार देखकर समृद्धि बहुत खुश हुई। समृद्धि बिकेम सो हैप्पी गेटिंग दिस गिफ्ट फ्रॉम सौरभ। पेन स्टैंड देखकर उसने कहा, बाय सीइंग दिस पेन स्टैंड समृद्धि सेड, भैया अब तक का यह सबसे सुंदर और अनमोल उपहार है। ब्रदर, भैया मीन्स ब्रदर, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड बेस्ट गिफ्ट अप टिल नाउ। इतना कहकर वह अपने भाई सौरभ के गले मिली। बाय सेइंग दिस शी हग्ड हर ब्रदर सौरभ। इसी बीच सौरभ की मम्मी आ गई। बाय दैट टाइम सौरभ मदर केम, और गिफ्ट देखकर उन्होंने कहा, एंड सीइंग गिफ्ट मदर सेड, सौरभ उपहार तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे गुल्लक के पैसे कहाँ गए जो तुमने परसों गुल्लक से निकाले थे? सो मदर आस्क्ड, गिफ्ट इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट यू कलेक्टेड पिगी बैंक मनी, वेयर इज़ इट नाउ? जो तुमने परसों गुल्लक से निकाले, विच यू टुक आउट फ्रॉम द पिगी बैंक, वेयर इज़ इट नाउ? यह सुनकर सौरभ थोड़ा डरा और सहम गया। सो डरना मीन्स टू बी अफ्रेड, सहमना मीन्स टू फील हेजिटेशन. So hearing all this, Saurabh got scared and feeling little bit hesitation. उसने चौंक कर कहा, कुछ नहीं मम्मी, नथिंग मदर, पहले आप यह बताइए कि यह पेन स्टैंड कैसा बना है. फर्स्ट यू टेल मी हाउ दिस पेन स्टैंड हैज़ मेड. यह सुनकर मम्मी समझ गई कि सौरभ उनकी बातों को टाल रहा है. सो मम्मी अंडरस्टूड दैट Saurabh wants to avoid mother's old discussion. उन्होंने उसे डांटते हुए कहा. मदर स्टार्टेड स्कोल्डिंग सौरभ. पहले यह बता कि तुमने उस पैसों का क्या किया है. फर्स्ट टेल मी व्हाट डिड यू डू विथ दैट मनी. साफ साफ बताओ. साफ साफ मीन्स क्लियरली. टेल मी क्लियरली कि वो पैसे तुमने कहाँ खर्च किए. वेयर हैव यू स्पेंट ऑल दैट मनी, टेल मी क्लियरली. माँ की गुस्से भरी आंखें देखकर सौरभ डर गया. सौरभ गॉट स्कैर्ड सीइंग हर हिज मदर गॉट एंग्री. आंखें देखकर मीन्स सीइंग हिज मदर्स आइज. और रुआंसी आवाज़ में बोला. रुआंसी आवाज़ मीन्स रोने जैसी, मीन्स लिटिल बिट क्राइंग साउंड. सो ही रिप्लाइड विथ सम क्राइंग टोन ऑफ वॉइस. मम्मी, मैंने वे पैसे अपने दोस्त सार्थक को अपनी माँ की दवा लाने के लिए दिए थे. मदर, आई गेव दैट मनी टू माई फ्रेंड सार्थक टू बाई मेडिसिन फॉर हिज मदर. उसके पापा दिल्ली में ई रिक्शा चलाते हैं. हिज फादर इज़ ड्राइविंग ई रिक्शा इन दिल्ली. और पिछले कुछ दिनों से ई रिक्शा की हड़ताल चल रही है. एंड सिंस लास्ट फ्यू डेज देयर वॉज अ स्ट्राइक फॉर ई रिक्शा, जिसके कारण बिकॉज ऑफ दैट उसके पिताजी की कुछ कमाई नहीं हुई. हिज फादर कुडंट अर्न एनीथिंग. ऐसे में उसकी मदद करना मुझे उचित लगा. सो आई थॉट आई शुड हेल्प हिम. इसलिए वो 2,000 रुपये मैंने उसे दे दिए. सो आई गेव दैट 2,000 रुपीज़ टू हिम. सौरभ की बातें सुनकर उसकी माँ की आंखें खुशी से भर गई. सो लिसनिंग ऑल दिस फ्रॉम सौरभ, हिज मदर बिकेम सो हैप्पी. आंखें खुशी से भर गई मीन्स बिकम हैप्पी. उन्होंने सौरभ को खुशी से गले लगा लिया. शी हग्ड हर सन विथ हैप्पीनेस. अपने छोटे से बच्चे के हृदय की पवित्रता
और सहयोग की भावना देखकर उनका दिल गदगद हो गया। गदगद हो जाना इज एन इडियम, मुहावरा, मीन्स टू बी वेरी हैप्पी। सहयोग की भावना, भावना मीन्स फीलिंग, सहयोग मीन्स कोऑपरेशन, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। एंड पवित्रता, हृदय की पवित्रता, हृदय मीन्स हार्ट, पवित्रता मीन्स प्योरिटी। सो his mother became so happy seeing that seeing that her son is very little in the age, but he is having very pure heart and the feeling of cooperation. So these all about Anmol Upahar. Let's start its question answer. फर्स्ट क्वेश्चन, सौरभ के मित्र का नाम क्या था और वह उदास क्यों था? What was the name of the friend of Saurabh and why was he sad? आंसर, सौरभ के मित्र का नाम सार्थक था। So the name of सौरभ friend is सार्थक। वह पैसे के अभाव के कारण माँ की दवा का प्रबंध नहीं कर सका था, इसलिए उदास था। सो ही वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो मनी, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल। प्रबंध करना मीन्स टू अरेंज समथिंग। सो सार्थक वॉज नॉट एबल टू अरेंज मनी फॉर हिज मदर्स मेडिसिन। सो बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज सैड। सेकेंड, माँ का दिल गदगद क्यों हुआ? वाई हिज मदर वॉज सो मच हैप्पी? सौरभ ने अपने जमा किए हुए पैसे अपने मित्र को दे दिए। सौरभ गेव हिज कलेक्टेड मनी टू हिज फ्रेंड ताकि बिकॉज ऑफ सो दैट मित्र अपनी माँ के लिए दवा ला सके। So that his friend can buy medicine for his mother. अपने बेटे की सहयोग की भावना देख माँ का दिल गदगद हो गया। Seeing that feeling of cooperation in his son, mother became so much happy. थर्ड क्वेश्चन, सौरभ चिंता में क्यों पड़ा? तब उसने क्या किया? Why was Saurabh worried and at that time what did he do? थर्ड आंसर, सौरभ ने बहन के लिए जमा किए पैसे अपने मित्र को दे दिया। So Saurabh gave collected money to his friend, the money he collected for his sister. So he gave his money collected for his sister to his friend. अब वह बहन को क्या देगा? नाउ वॉट विल ही गिव टू हिज सिस्टर? यह सोचकर, थिंकिंग दैट, वह चिंता में पड़ गया। ही बिकेम वरीड, थिंकिंग दैट नाउ वॉट विल ही गिव टू हिज सिस्टर। फोर्थ, यदि आप सौरभ की जगह होते, इफ़ यू वेर इन द प्लेस ऑफ सौरभ, तो सार्थक की सहायता किस प्रकार करते? हाउ कुड यू हेल्प सार्थक इन दिस सिचुएशन? कारण सहित उत्तर लिखिए। गिव द आंसर विथ रीज़न। यदि मैं सौरभ की जगह रहता तो मैं सार्थक की सहायता उसकी माँ का इलाज करा कर करता। इफ़ आई वेर इन द प्लेस ऑफ सौरभ, आई कुड हेल्प सार्थक बाय अरेंजिंग फॉर हिज मदर्स ट्रीटमेंट। इसका कारण है कि द रीज़न इज़ दैट हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स ऑलवेज। नेक्स्ट एंड लास्ट आंसर, कहानी के आधार पर सच्चे मित्र का जीवन में महत्व स्पष्ट कीजिए। गिव द रीज़न on this basis of this story. Give the importance of true friend, सच्चा मित्र, ट्रू फ्रेंड in our life. कहानी के आधार पर, आंसर 5, कहानी के आधार पर
सच्चे मित्र अपना दुख दर्द आपस में बांटते हैं. बांटना means to share. So, on the basis of this story, we can say that true friends always share their problems, दुख दर्द means their problem, their sadness with each other. संकट में एक दूसरे की सहायता करते हैं. संकट, any problem, so they help each other at the time of problem. खुशी और गम में शामिल होते हैं. They always participate in the happiness also and also in the sadness. So these all about the story Anmol Upahar. I hope you have liked it and enjoyed this story with question answer. So please share with your friends and subscribe my channel. Thank you.